Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 7 in your NCERT book. The chapter name of this chapter, acids, bases and salts. In previous classes, we almost understand about whole NCERT book, whole explanation. In today's class, we discuss chapter number 5, all question answer. Now, let's start question number 1. Question number 1 is multiple choice questions. Okay. First question is baking soda turn on. तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये clear होना चाहिए basic soda is an example of acid or base. So basic soda is example of base. So our answer is baking soda turn red litmus to blue. है ना? As we all know very well, कि bases are transferred to red litmus to blue, but acid just opposite blue litmus to red. Okay, so our answer is red litmus to blue. Now next one is a substance which turns red litmus bluish. ऐसा कौन सा substance है जो red को blue में change करता है? Before that we discuss here कि ऐसे सब्सटेंस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करते हैं आर कॉल्ड बेसिक इन नेचर. कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक इन नेचर के होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर. इनमें से ऐसा कौन है जो इंडिकेटर के वर्क नहीं करता? मिथाइल ऑरेंज इज एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर. ठीक है. Phenolphthalein is an example of synthetic indicator. Litmus is example of natural indicator. So that's why antacid pill is not an indicator. Antacid where we use antacid pill where we use in a indigestion में. Indigestion में जो stomach में hydrochloric acid की या HCl की amount बढ़ जाती है, then we use a antacid pill. ओके तो जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की परसेंटेज ज्यादा होती है. आपको आई थिंक यू रिमेम्बर दिस. Okay, so antacid pill we use in a indigestion process. So methyl orange, phenolphthalein, and litmus, three of the are a indicator, but antacid pill is not a indicator. A base have a bitter taste, turn blue to red, sour taste, no effect of turmeric. The answer is correct is a though all bases have a bitter in taste. Okay, and filling the blanks, bases are dash to touch. Bases को जब हम touch करते हैं तो वो हमें कैसा feel कराते हैं? Soapy to touch. Okay, when you are methyl orange as an indicator gives red color for acid. जो methyl orange है वो as an indicator work करता है तो वो red color देता है किसके through acids के साथ. Okay, dash is gives red color for acids. एसिड के साथ में रेड कलर कौन गिव देता है? लिटमस पेपर. ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है किसमें? एसिड्स के अंदर. ठीक है. एंड एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट डैश. भाई एक एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाए किस चीज को रब करेंगे? बेकिंग सोडा को. बेकिंग सोडा से रब करेंगे या हम यहाँ पर बेस वर्ड यूज भी बेस आंसर भी लिखेंगे तो देन इट इज आल्सो करेक्ट. Now next question is question I answer. State difference between acids and bases. So first acid and second one is base. So acid are sour in taste, bases are in a bitter in taste. दोनों का taste का difference हो गया. Then we turn to a litmus paper. Acid blue litmus paper को turn करता है into a red color. So acid turn blue litmus paper into a red color, but bases turn red litmus paper to blue in color. एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक पाउडर. जब एसिड्स को रिएक्ट कराया जाता है टर्मरिक पाउडर के साथ में टर्मरिक पेस्ट के साथ में इट डजंट चेंज देयर कलर. वो अपना कलर चेंज नहीं करता. जो येलो है वो येलो ही रहती है टर्मरिक. बट जो है व्हेन वी ऐड टर्मरिक पाउडर या टर्मरिक पेस्ट विद बेस इट टर्न अ रेडिश ब्राउन कलर या ब्रिक रेड कलर. ओके, here is an example of acids. Example HCl, H2SO4, and here is the example of bases NaOH and KOH. Yes, NaOH means sodium hydroxide. KOH means होता है potassium hydroxide. Okay, HCl means hydrochloric acid. H2SO4 sulfuric acid. Okay. Next one is ammonia is found in many household products such as window cleaner. It turned red litmus blue. What is its nature? जो अमोनिया से मिलकर जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को क्लीनिंग में काम आते हैं, क्लीनर में काम आते हैं, वो
किस तरीके का नेचर रखते हैं, एसिड रखते हैं कि ब्लू रखते हैं। और आपको एज अ हिंट के लिए दिया भी है कि वो रेड लिटमस को किसमें चेंज करते हैं, ब्लू में। तो अगर हमें याद रहेगा कि रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है, बेसिस, जिनका नेचर बेसिक होता है वही रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में टर्न करते हैं ना। तो आंसर इज अमोनिया इज अ बेसिक इन नेचर। बाई चांस यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि भाई हम जो भी चीज यूज करें वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करे, देन हम कह देते वो जो भी सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। ओके, is the distilled water is acidic, basic or neutral? How would you verify it? So distilled water क्या की property जो है, what kind of property have a distilled water? So our answer is distilled water is a neutral in nature. We can verify it using a red litmus or blue litmus paper. हम दोनों litmus paper से check करेंगे कि भाई रेड और ब्लू दोनों को चेक करेंगे कि मे बी वो एसिड है या बेस है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि it doesn't change their color, so that's why distilled water is a neutral in nature. Name the source of देखिए डिस्टिल वाटर मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टिल वाटर का मीनिंग यहाँ ये है, नॉर्मल जो हमारे घर पे जो टैप वाटर है या ड्रिंकिंग वाटर आता है उसके अंदर कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ और मिनरल्स भी होते हैं। लेकिन डिस्टिल वाटर के अंदर प्योर फॉर्म में वाटर को इवेपोरेट कराया जाता है, जो मिनरल्स वगैरह है वो उसी में रह जाते हैं, वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर को कंडेंस करके वापस वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, वो वाटर जो है वो डिस्टिल वाटर। ओके, distilled water doesn't have any type of salt and minerals. Okay, name the source from which litmus solution is obtained. What is the use of this solution? अब लिटमस सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन होता है, तो लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम लाइकेन्स। लिटमस सॉल्यूशन इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर। देखिए लिटमस सॉल्यूशन जो है हम किसका एक्सक्रीशन है, लाइकेन का एक्सक्रेटेड पार्ट जो है, जो सॉल्यूशन मिलता है हमें उसको हम बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन। और लिटमस सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं फाइंड आउट करने में, क्या चीज फाइंड आउट करने में कि पर्टिकुलर एनी सॉल्यूशन हैव अ व्हिच टाइप ऑफ नेचर, दिस वन इज एसिडिक और बेसिक। Okay, describe the process of neutralization with the help of an example. Neutralization is a reaction between an acid and a base to produce salt and water. देखो what is neutralization? Neutralization एक reaction है जिसके अंदर एक एसिड और एक बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर। एंड इसके साथ में ये लाइन लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द इवोल्यूशन ऑफ फूड। ये क्यों लिखना जरूरी है अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट 1 and 2 क्वेश्चन के बाद करेंगे, ठीक है। तो विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है हमेशा जब भी हैपन होगी, फर्स्ट पॉइंट इज सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगी एंड सेकंड वन इज इवोल्यूशन ऑफ हीट। जिस भी टेस्ट ट्यूब के अंदर या जिसके अंदर भी हम ये रिएक्शन को करवा रहे हैं तो बीकर क्या हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाता है, ठीक है, हीट इंक्रीज हो जाती है। ओके, so this process is a evaporation. Okay, question number 6. Dorothy have a few bottles of soft drink. एक डॉर्जी नाम की गर्ल है, उसके पास में कुछ बॉटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक के उसके रेस्टोरेंट में, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drink on the demand of customer. One customer want acidic drink, another customer want a basic drink, and third customer want a neutral drink. तो हाउ विल डॉर्सी डिसाइड विच ड्रिंक इज टू बी सर्व टू होम? तो वो कैसे डिसाइड करे, अब लेबल ही नहीं है उस पे तो कैसे डिसाइड कर सकती है? तो देखो हमने पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एसिड और बेस को क्लियर किया था, भाई न्यूट्रल का तो कोई बेस टेस्ट ही नहीं होता, ठीक है। तो डॉर्सी कैन टेस्ट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स, एसिडिक सॉल्यूशन, sour and taste, basic solution is bitter and taste, and the neutral solution has a no taste. Okay, along with testing Dorsey can litmus paper, Dorsey क्या करती है, litmus paper से टेस्ट करती है the nature of soft drink. He should blue litmus paper to test acidic solution. Dorsey has put a drop of solution blue litmus, if it turned red then solution will be acidic. Similarly, he can use a red litmus paper, taste the basic solution on red litmus paper, it turn into a blue, the solution will be basic in nature, or remaining bottle is a neutral solution. Okay, now next is question number 7. Explain why antacid tablet is taken when you suffer from acidity. अब एंटासिड टैबलेट्स क्यों लेते हैं जब एसिडिटी होती है? बिकॉज एंटासिड टैबलेट कंटेन अ बेस। एंटासिड जो होती है उसके अंदर क्या कंटेन होता है, बेस कंटेन होता है, लाइक अ
मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, कौन सा बेस होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, विच न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, जो हमारे स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस हुआ उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। हाउ इट इज यूज्ड व्हाइल सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, तो इसीलिए हम यूज करते हैं एंटासिड टैबलेट्स को। नेक्स्ट है कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेनेवर एंट बाइट, देखिए कैलामाइन सॉल्यूशन जो है when ant bite it inject formic acid inside the skin, जब भी चींटी काटेगी तो हमारी बॉडी के अंदर कौन सी एसिड हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। कैलामाइन कंसिस्ट ऑफ जिंक कार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर, इसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है जो बेसिक नेचर का होता है। हेंस कैलामाइन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड टू ब्रिंग अ रिलीफ टू द अफेक्टेड पर्सन, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर कौन सी रिएक्शन करेगी? न्यूट्रलाइज रिएक्शन करेंगे, ओके, और न्यूट्रलाइज रिएक्शन होते ही दोनों का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर, जो फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसको पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है, देन डिस्पोज किया जाता है वाटर बॉडीज में। why it is happen? Because factory waste are acidic in nature normally, the which cause to harm the aquatic life, जिससे water भी कैसा हो जाएगा बेटा? aquatic हो जाएगा, सॉरी acidic हो जाएगा, तो इसीलिए before they dispose they neutralize the whole waste. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, 3 लिक्विड आर गिवन टू यू, आपको 3 लिक्विड्स दिए हैं, जिनमें से वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज शुगर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है, एक जो चीज दी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज द एग्जांपल ऑफ एसिड, सेकंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज द एग्जांपल ऑफ बेस, एंड थर्ड इज अ शुगर सॉल्यूशन, ये क्या है? न्यूट्रल, सो न्यूट्रल का एग्जांपल है, अच्छे से समझिएगा। How will you identify them? हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि which one is acidic, base and neutral? You have only turmeric indicator, और अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर है, कुछ और लिटमस वगैरह नहीं है, आप कुछ और नहीं कर सकते, सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है कि which one is acid, base और neutral। तो हम सबसे पहले करेंगे, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ईच सॉल्यूशन एंड टेस्ट इट विद द टर्मरिक सॉल्यूशन। If the solution turned reddish brown of the solution is basic, sodium hydroxide mark the beaker as a base. तो sodium hydroxide पे तो हम easily mark कर देंगे कि this one is base. Next, take a test tube and add a few drop of base solution and the second solution. You check if this test tube become warm and the add turmeric. एक second. आप इस लाइन पे प्लीज ध्यान देना। मैंने जब आपको इससे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराई थी, जब मैंने क्या कहा था, जब भी व्हेनेवर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैपन, तब क्या होगा? हीट इवॉल्व होगी। हीट इवॉल्व का मीनिंग कि वो हीट प्रोड्यूस होगी, जो भी टेस्ट ट्यूब या बीकर में हम करें वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टर्मरिक जो है न्यूट्रल के साथ में रिएक्ट करेगी तब भी वो येलो ही रिमेन रहेगी, और टर्मरिक जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तब भी वो कलर चेंज नहीं करती, येलो ही रहती है। तो जब न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी येलो है, एसिडिक सॉल्यूशन में भी येलो है, तो हाउ कैन बी आइडेंटिफाई विच वन इज एसिडिक और विच वन इज न्यूट्रल सॉल्यूशन? तो वी टच द बीकर या टेस्ट ट्यूब, जो भी है टेस्ट ट्यूब को हम टच करेंगे, अगर वो टेस्ट ट्यूब हीट हो गई है तो वो वाला कौन सा होगा बीकर? एसिडिक, क्योंकि एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करके ही कौन सा सॉल्यूशन करती है बेटा? दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके ही वो जो टेस्ट ट्यूब है वो बिकम वार्म बिकॉज द न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट, वहां पर न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट होता है, इस वजह से ये चीज हैपन होगी। If the test tube of above solution does not become warm, अगर वो warm नहीं होती है, it does not show reddish brown color when turmeric solution is added, the second solution is neutral. I hope this point is clear to all of you. Okay. Now move to a next point, question number 9. Blue litmus paper is dipped in a solution, it remain blue. What is the nature of the solution? Explain. अगर कोई भी litmus paper किसी solution में हम dip करते हैं, it remain blue. Blue litmus paper लिया, blue ही रहा, उसको किसी भी solution में डालने पर, तो what is our result? What is the nature of the solution? Above solution may be neutral or basic in nature. अगर ऐसा होता है तो मे भी दो चीजें हो सकती हैं, कि वो solution में भी neutral हो सकता है और basic in nature का हो सकता है, as both of them will not change the color of blue litmus paper. तो दोनों में ही क्या होगा? blue litmus अपना color change करेगा। देखो neutral में तो क्या होता है, red है तो red ही रहेगा, blue है तो blue ही रहेगा, लेकिन basic solution में हम जब litmus paper को dip करेंगे तो it turn into a blue in color. तो अगर
ब्लू लिटमस पेपर को हम किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, इट रिमेन ब्लू, तो दैट मींस दो चांसेस हो सकते हैं, इट विल बी न्यूट्रल और इट विल बी बेसिक इन नेचर. Okay, last question is question number 10. State true and false. Nature acid turn red to blue. अगर एसिड का नेचर कैसा होता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करना, नो, उल्टा होता है, ब्लू को रेड में टर्न करता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू टू रेड, नो, इट टर्न रेड टू blue. Sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form a salt and water. Yes, it is correct statement. Yeah, this definition is a neutralization reaction. Sodium hydroxide और hydrochloric acid आपस में react करके क्या form करते हैं? Salt and water. Next one is indicator is a substance which show different colors in acidic and basic solution. Yes, indicator वो substance होता है जो acidic और basic solution के साथ में react करके different colors को represent करता है. The answer is true. Fluid decay is caused by the presence of a base. Answer is false. Fluid decay जो होता है वो acid ज़्यादा mouth के अंदर होने से fluid decay होगा, तो that's why our answer is false. I hope you understand all the question answer in this chapter. Now you do it this chapter and with neat and clean handwriting and make PDF and send it to me. Okay, class, take care.